Hello student, welcome to commerce classes. Now in this session we shall going to discuss lesson number 4. We already completed type number 1, means exam related type we had done. But now this topic in this session, in this video, we will going to discuss about the some important point which is not important for the board examination, but this is important for the lesson number 4, lesson number 5 and lesson number 6, admission of a partner, and lesson number 6, retirement of a partner. These things is very most important to understand yourself. So in type number 1 we already discussed calculating of sacrificing and gaining ratio. That much portion is enough for the board examination, and after that remaining portion is not important for your board examination, in short. And right now I would like to discuss about the revaluation account of assets and liabilities of a partnership firm and its accounting effect. Means why revaluation of assets and liabilities is necessary, and how it is going to be prepared, how to prepare revaluation account, and which point should be keep in mind while preparing revaluation account and revaluation of such assets and liabilities. So here I already wrote in this revaluation accounts of assets and liabilities of partnership firm and its accounting effect. The book value of assets and liabilities recorded in the books of partnership firm, when brought at present value, it is called revaluation of assets. Means in 1991 we already brought one building for the business purpose, and right now at that time 1991 we brought the value of rupees 10 lakh, and now if we have to if we need if we think that if I want to sell my property in the 2020, so what is the valuation of this particular property? Now if in nowadays, if I'm going to sell this property, building or whatever things, if you sell in present value, then but obviously value of that particular assets will increase. So here definition is said that the book value of assets and liability, whatever assets are there in the firm and whatever liabilities occurs in the firm, recorded in the books of partnership firm. Before we already recorded in partnership firm, then after when brought at present value, it is called revaluation of assets. Now in present time, if we compare that particular assets which we used to purchase in before, in past, and right now if we compare in the present value, then if value is compared with the that particular assets, that means revaluation of assets. Now second things, a special account is opened in the books of partnership firm to record the accounting effect of the revaluation of assets and liabilities. This account is called revaluation account. For the revaluation of whatever assets firms are going to revaluate, for that particular assets, firm are going to prepare some special accounts which is called revaluation account. And revaluation account, other name is revaluation account is profit and loss adjustment account. So here a special accounts is open in the books of partnership firm. So partnership firm specially prepared some personal account, or we can say revaluation accounts, for the revaluation of assets and revaluation of liabilities. So that is why whatever accounts is prepared is called revaluation account. Now question arise in mind, why revaluation of assets and liability is necessary? If partners are decided that why we have to do this kind of long procedure, revaluation of assets and liabilities, all these things. So if we are not doing revaluation of that particular assets and liability, then what is happening in the firm? And if we are doing revaluation of assets and liability, then what happened? Let's explain some. Let me explain with the example.
So here you have to just first two definition you have to write in your notebook. After that later on I will tell you that what portion you have to write. Okay, here I am already prepared all this scenario which I would like to explain you why revaluation of assets and liabilities is necessary. So let's start. Suppose here A and B are started their firm in year 2010, right? Year 2010 they started their business, and still it working, and this is year 2020, corona time. So here A and B are partners starting their business, commencement of business in 2010, and year is 2020, means 2020 is running year, current year. Now slowly and gradually this firm becomes a famous firm. It's at establishment of year in 2010. But during that time we purchase one assets. We purchased land and building in rupees 10 lakhs. 2010 we bought one assets, land and building, rupees 10 lakh. Now we all are familiar word with the depreciation. Whatever assets we purchase, that we have to calculate depreciation on that particular assets, right or not? Now again one question arises in your mind, sir, before you told us that land is not depreciable assets, it's appreciable assets. But my dear student, here land and building both term is both terms are there. That is why we need to calculate depreciation land and building, right? So 10 lakhs land and building we bought in 2010, and we have to calculate 10% depreciation on that particular assets. So year 2010 to 10 to 11 depreciation 10 lakh minus 10% depreciation, we have to calculate as per the SLM method. And you are familiar with this method, straight line method, means every year depreciation amount in equal amount. 10 lakh into 10 upon 100, 1 lakh. Then 9 lakh into 10 upon 10 lakh into 10 lakh into 10 upon 100. So 1 lakhs deducted from that particular amount. So after 10 years, what is the value of that particular assets? 10 lakh amount of that particular assets, and depreciation is 1 lakh decreasing in every year. Then what is the amount in 2020? What is the value of that asset in 2020? Zero, right? So it doesn't mean that land and building is falling down, right? Land and building is still alive, and still business are working on that. But value of that assets is right now by deducting depreciation is right now in 2020 zero. It means this land and building we bought in 2010 10 lakhs. After 10 year 1 lakh depreciation we already deducted, and right now its value is zero. But now in this current situation, if we revaluate that particular land and building in now current situation 2020, then in 2020 this value will arise, or we can say increase. Value of that land and building in 2020 40 lakhs rupees expected. Here we are taking some as a example. So in 2020 that particular assets value is rupees 40 lakh. Now here if we are not doing revalue that particular assets, then what happen? And if we are revaluate that asset before revaluation and after revaluation, I already prepare revaluation account here. तो 2020 में उसकी जो वैल्यू है वो 40 लाख रुपीज़ की हो जाएगी. अभी हम उस असेट्स को रिवैल्यूएट नहीं करेंगे, ठीक है. यहाँ पे मैंने दो बैलेंस शीट बनाई है. बैलेंस शीट में जब रिवैल्यूएशन नहीं करते तब, और रिवैल्यूएशन करते हैं आफ्टर रिवैल्यूएशन एंड बिफोर रिवैल्यूएशन. नाउ इफ वी एडमिट वन मोर पार्टनर सी बाय 1/3 प्रॉफिट शेयरिंग इन द फर्म, हमने उसको एडमिट कर लिया है फर्म के अंदर, तो क्या करेंगे
उस टाइम पे हमने एडमिट कर लिया। पर यहाँ पे अब करंट सिचुएशन 2020 में जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 लाख की उस लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तब की बात, और हमने यहाँ पे एक पार्टनर सी को एडमिट कर दिया है 1/3 प्रॉफिट हम जो भी फर्म में होगा उसको देना पड़ेगा। मतलब कि ये रिवैल्यूएशन नहीं करना है, ऐसे करके हमने पार्टनर्स को फर्म में एडमिट कर दिया। अब 1 जन 2020 को हमने पार्टनर्स को एडमिट कर दिया है, राइट। तो नहीं करना है ऐसा करके, पर यहाँ पे अब करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 40 लाख तो होगी, पर हम यहाँ पे नहीं कर रहे, यहाँ पे मैंने नहीं कर रहे, ठीक है। पर यहाँ पे जब हम डेट पार्टनर ए बी सी ने डिसाइड किया, यहाँ पे 3 पार्टनर है, पार्टनर ए बी सी, ए बी एंड नया कौन आया, सी ने, तीनों ने मिलकर डिसाइड किया गया। अब नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज दिस फॉर्म, राइट। हम फॉर्म को बंद कर देते हैं। तब क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर फर्म को बंद कर देंगे तो ये जो 40 लाख जो हम रिवैल्यूएशन असेट्स का करेंगे, और उसका रिवैल्यूएशन करते समय जो भी असेट्स का न्यू वैल्यू होगी, मतलब 40 लैक्स, उसमें से डायरेक्टली 1/3, मतलब 1/3 जो नया पार्टनर्स आएगा उसको डायरेक्टली 1/3 मतलब कितना मिल जाएगा उसको, 10 लाख रुपीज़ डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा उसको। कुछ नहीं किया है उसने, ही didn't do anything in the business and he directly get benefit in the firm। तो क्या करेंगे, उसी टाइम पे हमें रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। सिमिलरली कोई ऐसी, मैं यहाँ पे एक लाइबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, लाइबिलिटीज़ में भी ऐसा ही है। अभी मान लो कि लाइबिलिटी यहाँ पे बैलेंस शीट है और यहाँ पे भी बैलेंस शीट बनाई है। जब हम रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं, बिफोर द रिवैल्यूएशन एंड आफ्टर रिवैल्यूएशन, मान लो कोई हमारी लाइबिलिटीज़ है ऐसी, तो हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं, तो यहाँ पे जो क्रेडिटर्स हमारे, मान लो कि 50,000 के क्रेडिटर्स है, तो हमने रिवैल्यूएशन नहीं किया, तो कौन पार्टनर्स बेयर करेंगे दोनों क्रेडिटर्स पेमेंट करने की लाइबिलिटी, ए और बी। पर यहाँ पे जब हम रिवैल्यूएशन करेंगे और पार्टनर्स नया जो बिजनेस में आएगा, तब उसको भी वो लाइबिलिटी का अमाउंट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मतलब वो नया पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि आते ही डायरेक्ट मुझे पैसे पेमेंट करने मुझे कुछ मिला नहीं। तो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट। मीन्स न्यू पार्टनर विल नॉट गेट direct benefit, old partner will not get any losses, or retired partners will not get direct benefit or direct losses, or we can say admitted partner will not get direct benefit or direct advantages in the business। तो मेरा कहने का मतलब था, यहाँ पे जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है, हमारी लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड करने की बाकी रह गई है, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देंगे, तो यहाँ पे तो पार्टनर ए और बी शेयर कर लेंगे। बट इन दिस सिचुएशन, आफ्टर द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स और आफ्टर द रिवैल्यूएशन, इफ़ we revalue that particular liabilities, then new partners already have to distribute that particular loss in the business. So here, that is why firm have to do revaluation of assets and liabilities. So why revaluation account is prepared? So whole balance sheet restate and at the fair market price, जो हम बोलते हैं उसको फेयर मार्केट प्राइस पे, अभी की ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो, पर जो भी असेट्स है उसकी वैल्यू हमें रियलाइज़ होनी चाहिए। तो पूरी बैलेंस शीट, ऑल बैलेंस शीट एज कम्पेयर टू ऑल बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट वी गोइंग टू रिस्टेट, और फेयर मार्केट प्राइस, जो मार्केट में करंट प्राइस है उसकी, उसी तरह से हम उसको लेके जाएंगे, तो उसको रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, टू शो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट्स एंड liabilities and revaluation account is to be prepared। So that is why revaluation account is to be prepared। क्यों, क्योंकि to show the present value, पहले की हमारी जो assets है, before we already brought that asset, and nowadays in current market situation FMV, fair market price, FMV fair market price, उस assets की value कितनी है उसको दिखाने के लिए हम, to show the present value of assets and liability
prepare revaluation account and to record effect of revaluation account, राइट. रिवोल्यूशन अकाउंट की इफ़ेक्ट दिखाने के लिए हम रिवोल्यूशन अकाउंट को बनाते हैं. ओके, तो आते हैं हम हमारे यहाँ पे हाउ टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड हाउ इफेक्ट इज़ टू बी गिवन इन रिवोल्यूशन अकाउंट. सो ईयर आंसर में लिखा है मैंने क्रेडिट रिवोल्यूशन अकाउंट फॉर गेन और प्रॉफिट. कोई भी फर्म को प्रॉफिट होता है या तो कोई गेन होता है, राइट. प्रॉफिट और गेन सेम थिंग्स. तो क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है. क्रेडिट रिवोल्यूशन अकाउंट रिवोल्यूशन अकाउंट पे हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सी चीज़ को हम क्रेडिट करेंगे. इंक्रीज इन असेट्स. इफ़ वैल्यू ऑफ एनी असेट्स इज इंक्रीजिंग दैट वी हैव टू क्रेडिट दैट अकाउंट रिवोल्यूशन अकाउंट. यहाँ पे मैंने छोटा सा ईयर आई एम already prepared. I already prepare revaluation account which later on I will discuss with you. Here increase in assets means कोई भी assets की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे. फिर है इंक्रीज इन रिसीवेबल, मतलब कोई डेप्टर्स है हमारा उसमें इंक्रीज होता है. मान लो कि हमने किसी को क्रेडिट पे सेल्स किया 20,000 का और अभी उसका मतलब वो डेप्टर्स हमारा हो गया 20,000 का, और भी हमारे 2,000 के जो डेप्टर्स है वो जो अनरिकॉर्डेड है और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे डेप्टर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज इन डेप्टर्स. मतलब हमारे डेप्टर्स में जो कोई इंक्रीज़ होता है 20,000 प्लस 2,000 तो 22,000 हमारे डेप्टर्स बढ़ गए. मतलब डेप्टर्स हमारी क्या हो गई, असेट्स, हमें जिसके पास से पैसे लेने हैं, राइट. रिसीवेबल्स ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्टर्स. देन डिक्रीज इन पेबल्स, मतलब क्रेडिटर्स में हमारा कोई liability, creditors is a one kind of liability. Decrease in payables. If our payables is less, then we have to credit it in the revaluation account. Then next, decrease in provision. If any provisions are there in mention in the revaluation account that we have to pay. If any customer file a case against the firm, then we have to pay certain kind of provisions. If court has give some relaxation to the firm that you before you have to pay like 50,000 and now you have to pay 40,000, means decrease in provision. If any provisions is decreased, that we have to credit it in revaluation account. And then last point, unrecorded assets. If any assets unrecorded, then now we have to record it after the revaluation. That means increase in the assets. मतलब कि अनरिकॉर्डेड एसेट पहले आपने रिकॉर्ड नहीं किया और अभी आपको रिकॉर्ड करनी है तो क्या हो जाएगी, पहले आपने रिकॉर्ड की ही नहीं थी और अभी आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको वैल्यू क्या हो जाएगी, असेट्स इंक्रीज होगी. तो इसको हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ जो होगी उसको हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. यहाँ पे मैंने लिखे दिया है इन केस ऑफ इंक्रीज, डिक्रीज, बेनिफिट और गेन. तो इंक्रीज असेट्स में कोई भी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है, और लाइबिलिटी में जो डिक्रीज होता है तो भी क्रेडिट करना है, कोई बेनिफिट मिलता है तो भी क्रेडिट करना है, और गेन होता है तो भी हमें क्रेडिट करना है. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है. क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट. फिर यहाँ पे मैंने डेबिट साइड पे लिखा है इन केस ऑफ लॉस. कोई लॉस होता है, एक्सपेंसेस होता है, इंक्रीज और डिक्रीज. मतलब इंक्रीज यहाँ पे इंक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी तो क्रेडिट साइड पे, तो उससे वाइस वर्सा रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में. मतलब इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड डिक्रीज इन असेट्स, मतलब कोई लाइबिलिटी हमारी असेट्स डिक्रीज होती है तो यहाँ पे आएगा, और एसेट्स हमारी जो कोई असेट्स हमारी डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कोई लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो यहाँ पे ये चीज़ हम समझ लेते हैं, डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द लॉस. रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो डेबिट करना है जो लॉस फर्म occurs loss. Decrease in assets. If value of assets is decreasing, then we have to debit it. Decrease in debtors means if any debtors is decreasing, for example, our debtors is now 20,000 and some of debtors said that I won't be able to pay 5,000 of that particular sale. So 5,000 is a bad debt for the firm. So bad debts means decrease is in debtors. सो एसेट डिक्रीज हो गई हमारी. देन इंक्रीज इन क्रेडिटर्स. मान लो कि हमारे पहले क्रेडिटर्स है 25,000 और अब बढ़ गए रिवैल्यूएशन करने के बाद,
राइट 5,000 और मतलब 30,000, तो इंक्रीज मतलब लॉस हो गया हमारा, एक्सपेंस हो गया, ज़्यादा पैसे देने हैं फॉर्म में से ज़्यादा पैसे, तो यहाँ पे लिखना है। फिर इंक्रीज इन प्रोविजन, कोई प्रोविजन इंक्रीज होता है जैसे कि अभी मैंने आपको ही बोला था वैसे ही। फिर है रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अगर हम कोई लाइबिलिटी को पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, अनरिकॉर्डेड है और अभी रिकॉर्ड करना है, तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ को, कोई लाइबिलिटीज़ अनरिकॉर्डेड हमने रिकॉर्ड की ही नहीं थी, भूल गए थे, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी। तो कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। इन शॉर्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, पहले जो हम बिजनेस स्टार्ट किया था और अभी राइट नाउ व्हाट इज़ द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट असेट्स, दैट इज़ व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर revaluation account. Now some notes are there. If value of unrecorded assets and liability is not realized, then there is no effect occurs. मतलब कि क्या बोला है आपको, इफ़ वैल्यू ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटी, कोई भी असेट्स हमारे पास पड़ी है उसकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं होती है तो उसकी कोई इफ़ेक्ट आएगी नहीं। मान लो कि हमारे पास बिजनेस में एक टेबल पड़ा है या तो स्टूल पड़ा है कोई भी, तो उसको उसकी कोई वैल्यू रियलाइज़ नहीं होती है तो उसको निकल देंगे, उसकी कोई इफ़ेक्ट होगी नहीं। फिर नंबर 2 यहाँ पे है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ नोन एज अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि एडजस्टमेंट के ऊपर से हम उसको बनाते हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट को कॉपी करके हम बनाते हैं, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद ये पॉइंट आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, इंक्रीज इन डेबिट बैलेंस देन वी हैव टू क्रेडिट। कोई डेबिट बैलेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ। कोई इंक्रीज इन डेबिट बैलेंस देन इट इज़ क्रेडिटेड, डिक्रीज इन डेबिट बैलेंस देन इट इज़ डेबिटेड। अब इंक्रीज इन डेबिट, डेबिट बैलेंस किसका होता है, आप ट्रायल बैलेंस याद करो स्टैंडर्ड 11 में लेसन नंबर 10 ट्रायल बैलेंस। एसेट्स की कौन सी साइड होती है, मतलब एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस में कोई इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करो क्योंकि वो बेनिफिट है, यहाँ पे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। डिक्रीज इन डेबिट बैलेंस, राइट, कोई डेबिट बैलेंस डिक्रीज होता है तो उसको क्या करना है, उसको डेबिट करना, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट पे डेबिट करना है। फिर है यहाँ पे इंक्रीज इन क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, लाइबिलिटीज़ का होता है, किसका होता है, लाइबिलिटीज़ का। इंक्रीज इन क्रेडिट बैलेंस मीन्स डेबिट, राइट, वी हैव टू डेबिट इट। इंक्रीज इन क्रेडिट बैलेंस डेबिट एंड डिक्रीज इन क्रेडिट बैलेंस मतलब आपको क्या करना है, क्रेडिट। दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग, देन वी हैव टू मेंशन इन द रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इफ लाइबिलिटी इज इंक्रीज देन we have to mention in the debit side of revaluation account. I think you getting me what I mean to say. In short, you have to remember in your mind, if there is increase in assets and receivable, then it is called profit. If there is number 2, if there is decrease in assets and receivable, then it is called loss. Number 3, if there is increase in liabilities and provision, then it is called loss. Number 4, if there is decrease in liability and provisions, then it is called profit. Number 5, if unrecorded assets are brought to book, then it is profit. If any, before I told you na that if any unrecorded assets are brought to books, that it is a profit. Number 6, if unrecorded liability are brought to books, then it is a loss. Now here some journal entries we have to learn and keep in mind. These things is very important for calculation of your all the problems. Okay, तो यहाँ पे मैंने रिवैल्यूएशन यहाँ पे जर्नल एंट्री का एक प्रोफॉर्मा बनाया है जो आपको भी अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है, और ये प्रोफॉर्मा में आपको इस जर्नल एंट्री जो है वो समझनी है। ओके, सबसे पहली जर्नल एंट्री, व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। कोई भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। अच्छा, असेट्स की कौन सी साइड होती है मुझे बताओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। असेट्स जो है, असेट्स की होती है कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड। और कोई भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है मतलब उसी असेट्स में प्लस होता है तो डेबिट होता है। डेबिट प्लस डेबिट क्या होता है, इफ़ देयर इज़ इंक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, तो कोई भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या करना है, रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट, उसी असेट्स में क्या करना है, प्लस करना है,
राइट। एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, मतलब मैंने अभी आपको दिखाया था ना छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट, कि जो भी बेनिफिट होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्लोज कर मतलब क्रेडिट करना है आपको। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एंट्री, कोई भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, राइट। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ये जो असेट्स इंक्रीज हुई है हो जाएगी। फिर नंबर 2 है व्हेन देयर इज़ अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, कोई असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो डेबिट बैलेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होता है तो क्या करेंगे हम, उतना पैसा माइनस करेंगे। तो डिक्रीज होता है तो कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन। कोई असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट क्रेडिट, मतलब क्या करेंगे, उतना पैसा क्रेडिट क्यों करेंगे, उतना पैसा माइनस करेंगे, इसलिए क्योंकि वो असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है इसीलिए। तो यहाँ पे ये याद रखना है, कोई असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मतलब डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है कोई पर्टिकुलर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है वो। फिर नंबर 3 है when there is a provision for doubtful debt or discount reserve on debtors, this both things is loss or expense we can say, right? So here ये दोनों जो है हमारे एक्सपेंस है और लॉस भी है। बैड डेट, डाउटफुल डेब्ट, मतलब जो हमारे पास से पैसे ले गया अभी हमें देना नहीं देगा ऐसा रखता है डाउटफुल डेब्ट, और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेब्टर्स बोथ आर एक्सपेंस और लॉस। और एक्सपेंस और लॉस हम कहाँ पे लिखते हैं, मैंने आपको पहले बताया, डेबिट साइड ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेब्टर्स अकाउंट क्रेडिट, क्या होगा, क्रेडिट का मतलब रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस या तो लॉस है क्योंकि इतने लोग पैसे हमें देके जाने वाले नहीं हैं। फिर है नंबर 4, इफ़ देयर इज़ एन अनरिकॉर्डेड असेट्स एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस। एक्रूड इनकम मतलब इनकम रिसीवेबल, इफ़ एनी इनकम रिसीवेबल हमें लेनी बाकी है जिसके पास है, तो उसको इनकम हमारी क्या होती है, इनकम का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, उसी असेट्स को क्या करेंगे हम, मतलब अनरिकॉर्डेड असेट्स, जो असेट्स रिकॉर्ड नहीं है और उसके बाद इसको रिकॉर्ड करेंगे तो उसी असेट्स को हम डेबिट करेंगे, रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट। फिर एक्रूड इनकम मतलब इनकम रिसीवेबल भी हमारी इनकम में मिलने वाली है तो उसको भी डेबिट करेंगे हम, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। और प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स, हमने प्रीपेड मतलब एक्सपेंस पेड इन एडवांस, तो वो भी हमारी क्या है, असेट्स है। तो तीनों को क्या करेंगे हम, डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। तो दिस 3 थिंग्स वी डेबिटेड देन क्रेडिटेड। फिर नंबर 5 है इफ़ देयर इज इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़, कोई लाइबिलिटीज़ का अमाउंट इंक्रीज होता है, राइट। मतलब कि हमारे पास 20,000 के डेप्ट क्रेडिटर्स थे, हमें पेमेंट करने हैं, वी हैव टू पे 30,000 टू क्रेडिटर्स एंड नाउ इट्स मोर अराइज 5,000, मतलब 35,000 हो गए हमारे पास। तो क्या एंट्री आएगी, रेवोल्यूशन अकाउंट, मतलब एक्सपेंस होगा तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज़ अकाउंट क्रेडिट, राइट। मतलब क्या करेंगे, कोई लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है तो रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड पे उसी लाइबिलिटीज़ का नाम लिखेंगे, कोई भी लाइबिलिटी या तो क्रेडिटर्स हो इंक्रीज होते हैं तो। फिर नंबर 6 है इफ़ देयर इज डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज होता है तो मान लो कि क्रेडिटर्स है, पहले हमें देना था 30,000 अब देना है 25,000, राइट। तो क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, इसका वाई से वर्सा हो जाएगा, रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। मतलब रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट में क्या जाएगा, बेनिफिट ही जाएगा। मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि कोई भी बेनिफिट होते तो रेवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट है, क्योंकि यहाँ पे पहले 30,000 देने थे, अभी देने हैं 5,000 सॉरी 25, मतलब 5,000 का जो बेनिफिट है उसको हम रेवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट में करेंगे। तो डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज देन रेस्पेक्टिव लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट। देन नंबर 7 when an entry made for unrecorded liabilities, right, if any entries occurs for the unrecorded liabilities, मतलब पहले हमने liabilities नहीं रिकॉर्ड की थी और अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रेडिटर्स हमारे पहले 30,000 के थे, हमने रिकॉर्ड किए नहीं, अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इतना पैसा हमें क्रेडिटर्स को देना है, मतलब वो हमारी लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटी है तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, मतलब अनपेड, जो भी हमारे पैसे अनपेड है, पहले हमने नहीं पेड करने थे, पहले हमने नहीं पेड किया, अभी पेड करने हैं, नाउ वी हैव इट्स स्टिल आउटस्टैंडिंग, देन इट इज़
called revaluation account debit to outstanding liabilities account credit. Hope you are getting me. Now here when revaluation account is closed, जब हम revaluation account को close करते हैं तब इफ़ प्रॉफिट ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, मतलब कि रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है और डेबिट साइड पे इफ़ एनी डिफरेंस अराइजेज ऑन डेबिट साइड देन रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। उसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे? पार्टनर्स के करंट और कैपिटल अकाउंट में। और अगर कोई लॉस, इन केस ऑफ लॉस ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट देन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, मतलब कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसी पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। सो you can see I already prepare रिवैल्यूएशन अकाउंट, वी कैन से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बट यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही रखेंगे। अभी ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बनाया है वो जर्नल एंट्री के ही हिसाब से बनाया। आप देखो पहली जर्नल एंट्री क्या थी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो पहले हमने क्या किया? रिस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय असेट्स अकाउंट नंबर 1, यहाँ पे ब्रैकेट में मतलब एंट्री नंबर 1, यहाँ पे इंक्रीज इन असेट्स में क्या हो रहा है? इंक्रीज। डिक्रीज वाली जो नंबर 2 वाली जो है एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव असेट में, यहाँ पे देखो टू असेट्स अकाउंट नंबर 2 डिक्रीज इन असेट्स, मतलब कोई भी असेट्स में डिक्रीज होता है तो यहाँ पे लिखेंगे हम। उसी तरह से आप सारी एंट्री देखते जाओ तो उसी हिसाब से मैंने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है प्रिपेयर किया है। और फिर है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 जो एंट्री है उसी तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री की है। यहाँ पे मैंने एंट्री नंबर 3 देखो, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स, ये दोनों यहाँ पे आ गए नंबर 3। फिर नंबर 4 में जो है नंबर 4 वाली एंट्री 1, 2, 3 ये एंट्री है। तो इस तरह से इन शॉर्ट आपको याद रखना है, कोई भी असेट्स में बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे, और डिक्रीज़ होता है तो यहाँ पे। कोई लायबिलिटी जो है हमारी डिक्रीज़ होती है तो यहाँ पे, और इंक्रीज़ होती है तो डेबिट साइड पे। ये चीज़ आपको याद रखनी है और पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। अभी यहाँ पे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। वो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राइट जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ रिवैल्यूएशन। जो ये असेट्स एंड लायबिलिटी है उसका हमें रिवैल्यूएशन करना है। या असेट्स एंड लायबिलिटी यहाँ पे एक दिया है, फिर बुक वैल्यू दी है और रिवैल्यूएशन वैल्यू, मतलब रिवैल्यूएशन वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, करंट सिचुएशन में जो उसका रिवैल्यूएशन हुआ है वो मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे मशीनरी जो है पहले बुक वैल्यू थी उसकी 1 लाख और यहाँ पे हो गया है अभी उसका रिवैल्यूएशन किया, मतलब मार्केट प्राइस मतलब 80,000 हो गया। तो पहले से असेट्स की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू कितनी कम हुई? 20,000। जो 20,000 हम लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस में लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट मतलब कम हुआ है, ब्रैकेट में लिखेंगे वो। फिर लैंड है, तो लैंड आपका कितना है? 3 लाख का लैंड है और अभी जो उसकी वैल्यू रिवैल्यूएशन हुआ और मार्केट प्राइस से हमने कंपेयर किया तो कितना? 5 लाख। मतलब उस एसेट्स की प्राइस, राइट, लैंड क्या है? एसेट्स है, मशीनरी भी एसेट्स है, तो लैंड की प्राइस कितनी इंक्रीज़ हुई? 2 लाख रुपीज़ इंक्रीज़ हुई। तो 2 लाख रुपीज़ जो इंक्रीज़ हुई उसको हम सिर्फ ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे 2 लाख रुपीज़। फिर नंबर 3 है यहाँ पे आपका क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आपका कितना है? 1 लाख। और अभी कितना है? पहले हमारा क्रेडिटर्स, हमें पैसे कोई क्रेडिटर्स को देने थे 1 लाख रुपीज़ और अभी 95,000, मतलब 5,000 जो है हमारी लायबिलिटीज़ क्या है? डिक्रीज़ हो गई। डिक्रीज़ हो गई तो हम कहाँ पे लिखेंगे? बेनिफिट हो गया तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस अनपेड है, हमने अभी तक चुकाया नहीं है, पेमेंट नहीं किया है, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, एक्सपेंसेस बढ़ गया। तो बढ़ गया है तो हमें क्या करेंगे? 3,000 रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे, मतलब इसको भी माइनस में लिखेंगे। और इनकम रिसीवेबल्स 2,000 की इनकम रिसीवेबल, अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है उसकी बुक वैल्यू नहीं दी है,
और डायरेक्ट रिवैल्यूएशन वैल्यू दी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3000, तो 3000 हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, ऐसा मतलब ऐसा समझना है आपको, माइनस करना है, वो माइनस मतलब वो डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन में जाएगा। इनकम रिसीवेबल, उसकी बुक वैल्यू नहीं दी है पर आपको रिवैल्यूएशन वैल्यू दी है 2000, तो 2000 रिवैल्यूएशन वैल्यू मतलब हमारी असेट्स जो है वो बड़ी है तो बेनिफिट हुआ है, बेनिफिट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। ओके, ये तो हमने कर लिया कंपैरेटिव स्टडी। अब आफ्टर द कंपैरेटिव स्टडी वी हैव टू राइट जर्नल एंट्रीज फॉर दैट पर्टिकुलर असेट्स। सबसे पहले मशीनरी का हम असेट्स की जो है मशीनरी का एंट्री लिखेंगे। तो मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई? मशीनरी की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई? डिक्रीज़ हुई। इफ़ मशीनरी एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज़ होता है तो एसेट्स की एंट्री क्या करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई, मशीनरी की, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। कितना डिक्रीज़ हुआ यहाँ पे, 20,000 का अमाउंट डिक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पे लिख दो 20,000 लिख दिया है, और बीच में यहाँ से एक लाइन खींच देनी है, वो बाद में हम कर देंगे पहले। फिर नंबर 2 है आपका लैंड की जो वैल्यू है। देखो लैंड में कितना हमारा वैल्यू जो है वो नंबर 2, लैंड में कितना इंक्रीज़ हुआ है, लैंड हमारी कितनी हुई, पहले थी कितनी 3 लाख, अभी हो गई 5 लाख। तो क्या करेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट credit. What is the increase amount, 2 lakh rupees, so here 2 lakh and here 2 lakh, right? Then एंट्री नंबर 3, तो उसके बाद हमारा क्या है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स के वैल्यू में क्या हुआ, क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई? पहले हमें क्रेडिटर्स को देना था 1 लाख रुपीज़ एंड नाउ वी हैव टू पे 95, मतलब कि 5000 का हमें बेनिफिट मिला, कितना, 5000 का बेनिफिट। ओके, कोई भी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो हम उसको रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 5000। उसके बाद नंबर 4 क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें क्या करने हैं, डायरेक्ट बुक मार्केट प्राइस पे दिया है, मतलब हमें आउटस्टैंडिंग पेमेंट करना है, हमारी लाइबिलिटी है, हमें एक्सपेंस है, हमारा क्या है, एक्सपेंस। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे नंबर 4 लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे नंबर 4, क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग expense account credit. What is the amount, 3000। 3000 क्या है, आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड है हमारे। तो ये हो गया हमारा। और नंबर 5 क्या है, इनकम रिसीवेबल, मतलब हमारी असेट्स है, मिलने वाली है, बाकी है, स्टिल रिमेन्स टू रिसीव। ओके, तो यहाँ पे रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 2000। अभी ये तो हो गई 5 एंट्री, पर हमें इसको इफ़ आई वांट टू कंबाइन दिस एंट्री देन व्हाट स्टेप आई हैव टू कीप इन माइंड। तो यहाँ पे ये मैंने 5 एंट्री की है, पर यहाँ पे मैंने नीचे कंबाइन एंट्री भी की है। देखो कंबाइन एंट्री में क्या होता है कि जो भी बेनिफिट है वो प्लस हो जाएंगे हमारे, ठीक है, मतलब जो बेनिफिट है उसको यहाँ पे एक साथ कर देंगे, ये हमारा मतलब लाइबिलिटी का अमाउंट है उसको क्या कर देंगे। तो ये 5 एंट्री इस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इस टाइम सेविंग प्रोसेस, यू हैव टू डिसाइड दैट विच वन यू प्रेफर, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मतलब कौन सा लॉस गया है तो लॉस को साथ में कर दिया, और कौन सा हमारा बेनिफिट गया है, प्रॉफिट हुआ है, उन सभी को हमने साथ में कर दिया, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया 2,07,000। ठीक है, तो आपको ऐसे लॉजिक थोड़ा दिखाना है। एंड लास्ट इन वीडियो नंबर, दिस इज़ वीडियो नंबर 3 एंड वीडियो नंबर 4 वी विल डिस्कस ऑन फुल फ्लेज एग्जाम्पल
which is not example which is not important for your board examination, but one or two sums we will discuss and then finish this lesson. Some important points I would like to discuss with you, which is helpful in lesson number 5 or 6. So before starting lesson number 5 or 6, the summaries of that lesson we will discuss in this lesson number 4. Then one or two example we will do, then finish this lesson number 4.